I want to today share on freedom from fear. आज मैं भय से छुटकारे के बारे में बांटना चाहता हूँ। First of all, let's look at a verse in Judges chapter 1. सबसे पहले हम न्यायियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय से एक वचन को देखेंगे। It's written of different tribes here. In verse 27, it's written, see, actually, God told these Israelites that you have to possess the entire Canaan. All the Canaanites have to be driven out. और यहाँ इस्राएल के अलग अलग घरानों गोत्रों के विषय में बताया गया है और परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि कनान जितने भी कनानीय है उन सबको तुम्हें उस देश से निकालना है। But we can see some sad words here in about different tribes. पर अलग अलग गोत्रों के विषय में यहाँ कुछ बहुत ही दुखी शब्द लिखे हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं। We can see in verse 27, chapter 1, verse 27, Manasseh did not take possession of Beth Shean and its villages. और न्यायियों 1:27 में हम कुछ बहुत दुख भरे शब्द पढ़ते हैं। वहां लिखा है, मनश्शे ने अपने अपने गांवों समेत बेतशान के निवासियों को न निकाला। And in verse 29, Ephraim, another tribe, did not drive out the Canaanites who were living in Gezer. और 29 वचन में एक और गोत्र के विषय में लिखा है कि एप्रेम ने गेजर में रहने वाले कनानियों को न निकाला। And verse 30, Zebulun did not drive out the inhabitants of Kitron. और वचन 30 कहता है, जबूलून ने कित्रोन के निवासियों को न निकाला। And verse 31, Asher did not drive out the inhabitants of Akko. और 31 वचन कहता है, आशेर ने अक्को के निवासियों को न निकाला। And verse 33, Naphtali did not drive out the inhabitants of Bethshemesh. और 33 वचन में लिखा है कि नप्ताली ने बेतशेमेश के निवासियों को न निकाला। And see what is written in verse 34. It's written that Amorites, it's written about the tribe of Dan. और 34 वचन में देखिए क्या लिखा है कि आमोरियों ने और ये दानियों के गोत्र के विषय में लिखा है। And it's written Amorites forced the sons of Dan into the hill country and they did not allow them to come down to the valley. और यहाँ लिखा है कि अमोरियों ने दानियों को पहाड़ी देश में भगा दिया और तराई में आने न दिया। And verse 35, yet Amorites persisted in living in Mount Heres. और 35 वचन कहता है, इसलिए एमोरी जो है हेबेस नामक पहाड़ में बसे ही रहे। Just think of this sad incident. See, actually, the children of Dan should have driven out Amorites, but on the contrary, Amorites forced these sons of Dan into the mountain, and they never allowed them to come down, and they persisted in living in that land. और देखिए क्या ही दुखी घटना यहाँ लिखा है। होना तो ये चाहिए था कि दानियों को एमोरियों को उस देश से निकालना चाहिए था, पर उसके बजाय एमोरियों ने दानियों को पहाड़ी देश से भगा भी दिया, उससे भी ज्यादा उन्हें तराई में भी नहीं आने दिया और वे वही बसे रहे। See, I was thinking of fear. God wants all his children to be free from this fear. But many times what happens is, instead of God's children driving out fear from their life, fear comes to possess the lives of so many. And they, as is written here, as is written of these Amorites, they persist. This fear continues to live in the lives of so many believers. That's a very sad thing. और मैं भय के बारे में सोच रहा था कि परमेश्वर चाहता तो है कि हम भय पर विजय पाए, पर यह बहुत दुख की बात है कि भय कई विश्वासियों के जीवन में रहता है और वही वो बस जाता है। And we can see in chapter 2, the angel of the Lord, many times when it's written the angel of the Lord, we can say it's referring to Jesus Christ. He came. दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि यहोवा का दूत, और कई बार जब पुराने नियम में यहोवा का दूत लिखा गया है तो वो यीशु के बारे में दर्शाता है। And we can see in verse 2, this angel of the Lord said, you shall not make any covenant with the inhabitants of this land. And God told that you had to tear down their altar, but you have not obeyed me. What is this you have done? और दूसरा वचन, दूसरे अध्याय का दूसरा वचन कहता है, इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा न बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने ऐसा क्यों किया है? And verse 3, we can see God himself saying, because you have done like this, I will not drive out these people from before you. They will be like thorns in your side and their gods will be snare to you.
और तीसरा वचन कहता है, इसलिए मैं कहता हूं, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से न निकालूंगा और वे तुम्हारे पांजर में काटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। And when the people of Israel heard it, they cried about it, they wept about it. But actually speaking, they did not do anything to remove these people from the land. और जब इसराइलियों ने ये सुना तो वे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, पर अगर हम वास्तविकता में देखें कि इन लोगों को उस देश से निकालने के लिए उन्होंने कुछ कदम नहीं उठाए। See, this is what happens in the lives of so many believers, and God does not want that to happen in our life. और कई विश्वासियों के जीवन में यही होता है और परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन में ऐसा हो। The reason why fear persists in living in the ruling in the lives of so many believers is because sometimes God tells them to ask forgiveness to others and they refuse to do that. और क्या कारण है कि भय कई विश्वासियों के जीवन में बसा रहता है? तो उसका एक कारण यह है कि कई बार परमेश्वर उनसे कहता है कि वो किसी से माफी मांगे, पर वो ऐसा नहीं करते। Sometimes God tells them forgive others, they refuse to do that. कभी-कभी परमेश्वर उनसे कहता है कि वे दूसरों को क्षमा करें, पर वे ऐसा करने से मना कर देते हैं। God tells them to remove some idols from their life, they don't want to do that. परमेश्वर उन्हें कहता है कि अपने जीवन से कुछ मूर्तियों को निकालो, पर वे नहीं करना चाहते। Then God himself will say, okay, if you are not going to listen to my voice, I'm not going to drive these things out from your life. फिर परमेश्वर आप ही कहेगा कि अगर तुम मेरी आवाज नहीं सुनना चाहते तो मैं इन चीजों को तुम्हारे जीवन से नहीं निकालूंगा। I want to tell all those who are listening to me, let's listen and let's be obedient to the voice of the Holy Spirit. मैं उन सबसे कहना चाहूंगा जो मुझे सुन रहे हैं कि आइए हम परमेश्वर की आवाज को सुने और पवित्र आत्मा की आवाज को हम सुने। See, God wants us to be completely free from this terrible sin of fear. परमेश्वर हमें इस बहुत ही भयानक भय नामक पाप से पूरी तरीके से स्वतंत्र करना चाहता है। I want to show you first of all in Psalms 34. और सबसे पहले मैं भजन 34 से आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। We can see in verse 4, Psalms 34 verse 4 is written, I sought the Lord and he answered me and delivered me from all my fears. और भजन 34 उसके चौथे वचन में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। See, just imagine what David is telling. God delivered me completely from fear. और सोचकर देखिए कि दाऊद यहाँ क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे भय से पूरी रीति से स्वतंत्र या आजाद किया। And after that he's telling, how did that happen in his life? और इसके बाद वो कह रहा है कि ये उसके जीवन में कैसे हुआ। First of all, in verse 5, he's telling, they looked to him and were radiant. Their faces will never be ashamed. सबसे पहले वो 5वें वचन में कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। See, you know, what is faith? One good definition of faith is taking our eyes from every other thing and fixing our eyes on Jesus. विश्वास क्या है? विश्वास की एक बहुत अच्छी परिभाषा ये है कि अन्य सारी बातों से हम अपनी आंखें निकाल कर अपनी आंखें केवल यीशु मसीह की ओर लगाएं। Maybe we can just look at John. I think all of you know this verse, John 3:16. God so loved the world that he gave his only begotten son, that those who believe should not perish but have everlasting life. हम इस वचन को देखेंगे, शायद आप सब ही इस वचन को अच्छे से जानते हो, यूहन्ना 3:16, जहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। But what is the meaning of faith? He's telling in the previous verse. पर विश्वास का क्या अर्थ है वो पिछले वचन में बताता है। We can see in verse 14, as Moses lifted up serpent in the wilderness, even so Son of Man must be lifted up. वहां लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। See, I think all of you know that Moses lifted up that bronze serpent when so many snakes came and began to bite the people of Israel. Moses lifted up a bronze serpent. और मुझे लगता है कि हम सभी उस घटना को जानते हैं कि जब वो सांप आकर इस्राएलियों को डस रहे थे तो मूसा ने वो जो एक सांप की नकल बनाकर उसे ऊंचा उठाया था। Just imagine that person is bitten by a snake and is about to die and he comes near this bronze serpent.
और सोचकर देखिए कि उस व्यक्ति को अभी अभी एक सांप डसा है और वो इस पीतल के सर्प के सामने आता है and with his last strength, he lifts his eye up and looks at that bronze serpent. और उसके पास जितनी सामर्थ बची है उससे आखिरी सामर्थ का इस्तेमाल करके वो उस पीतल के सर्प को सांप के ऊपर नजर लगाता है The moment he looks at that, the effect of poison goes away from his life. जैसे ही वो सांप की ओर देखता है तुरंत वो जो विष उसके अंदर जहर काम कर रहा है उसका प्रभाव पूरी तरीके से निकल जाता है Now you can see verse 15. So that whoever believes in him will have eternal life. अब हम 15 वचन देख सकते हैं यूहन्ना 3:15 ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए So that is the way that is the meaning of faith. That means, say, for example, when we come to Jesus, I say, Lord, I'm fit for hell. That is the only place I can go. ये विश्वास का मतलब है ये विश्वास का चित्र है कि जब हम यीशु के पास आते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रभु मैं केवल नरक के लिए योग्य हूं मैं बस वहीं जाने के लायक हूं And to look at Jesus, Lord, you are the only way which I can be saved from hell in my life. और फिर हम यीशु की ओर देखते हैं और कहते हैं कि प्रभु तू इकलौता मार्ग है जिसके द्वारा मैं नरक से अपने जीवन में बचाया जा सकता हूं And that is true faith. When I look to him as my only hope, and as I repent and look to him, I get salvation, eternal life. और वही सच्चा विश्वास है जैसे मैं उसको देखता हूं मन फिराता हूं और ये देखता हूं कि वो मेरी इकलौती आशा है मैं अनंत जीवन पाता हूं Now we can see in Psalms 34, you know what David is telling? When I look to him like that, what happened? I became radiant. और वहां हम देखते हैं भजन 34 में लिखा है कि दाऊद कहता है जब मैं इस प्रकार प्रभु को देखता हूं तो क्या होता है कि मैं ज्योति पाता हूं या मेरा मुख ज्योति पाता है I want to tell you, see, when fear comes to our heart and fear grips our heart, what God wants us to do is to take our eyes from all those things that causes fear and to fix our eyes on Jesus. And just like, Lord, I want to just look to you, fix my eyes on you. And you know what happens? We'll become radiant. और जब कभी भय हमारे हृदय में आता है जब कभी भय हमारे हृदय को जकड़ लेता है तब परमेश्वर चाहता है कि हम जिन किसी बातों को देख रहे हैं उनसे अपनी आंखों को हटाकर प्रभु की ओर अपनी आंखें लगाएं और हम ज्योति पाएंगे And it's written, their faces will never be ashamed. और वहां लिखा है कि वे कभी लज्जित न होंगे I want to tell you, when faith comes, fear goes out. और मैं आपको बताना चाहता हूं जब विश्वास अंदर आता है तो भय निकल जाता है See, it's like the law of expulsion. One comes in, the other goes out. ये जो एक बाहर निकलने का मानो नियम है उस प्रकार है कि जब एक चीज अंदर आती है तो दूसरी जो चीज थी वो बाहर निकल जाती है You know, when true faith comes in, fear has to go out from our life. जब सच्चा विश्वास अंदर आता है तो भय को हमारे जीवन से जाना ही होता है Okay, then David says in next verse 4, this poor man cried, the Lord heard him and saved him out of all his troubles. और फिर दाऊद अगले वचन में भजन 34:6 में कहता है इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया See, poor is not mentioned here with respect to that. He is not telling that this person does not have any possession. That is not what he is telling. और यहाँ जब वो दीन कहता है तो उसका तात्पर्य ये नहीं कि उसके पास कोई भी संपत्ति नहीं है But what he is telling is he is not having resources or power to secure his own deliverance. पर वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास ऐसे प्रावधान नहीं है ऐसे चीजें नहीं है जिससे वो अपना छुटकारा कर पाए And so he is totally dependent on the Lord. और इसी वजह से वो पूरी तरीके से प्रभु पर निर्भर है See, we have to remember that we are like that. Each of us are like that. We are totally poor in the sense that we don't have the resources to overcome this fear in our life. और हमें देखना है कि हम खुद ऐसे हैं कि हम पूरी तरीके से असहाय होकर प्रभु पर निर्भर है कि हमारे पास खुद ये प्रावधान नहीं है कि हम अपने जीवन में भय पर विजय पा सके So that is why we have to be totally dependent on God. इसी वजह से हमें पूर्ण तौर पर प्रभु पर निर्भर होना है See, that is, I want to tell you, humility and faith always go together. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नम्रता और विश्वास ये निरंतर एक साथ चलते हैं The reason why many times we don't have fear, we don't have faith, is because
We are so proud people. कई बार हमारे अंदर विश्वास नहीं होता, इसका यही कारण है कि हम बहुत घमंडी लोग हैं। I think all of you know that incident of Syrophoenician woman who came to Jesus, and actually Jesus was testing her. और मैं सोचता हूँ कि आप सब इस घटना को जानते होंगे, जहां वो एक स्त्री यीशु के पास आई और यीशु उसकी परीक्षा ले रहा था। You know what Jesus said? It is not right for me to take the bread of children and give it to dogs. और यीशु ने उससे कहा कि मेरे लिए ये उचित नहीं है कि मैं बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को उसे दे दूं। Actually, Jesus was calling her dog. वास्तविकता में देखा जाए तो यीशु उसे एक कुत्ता कह रहा था। You know what she replied? पर She क्या replied, it is, Lord, even the dogs get the crumbs that fall from the table. पर उस स्त्री का उत्तर ये था, पर प्रभु, कुत्ते भी जो मेज से रोटी के जो कुछ कण गिर जाते हैं वो कुत्ते खा लेते हैं। In other words, what she is telling is, okay, I am a dog. That crumb is enough for me. और वो ये कह रही है कि ठीक है प्रभु, मैं कुत्ता हूं, पर वो जो एक छोटा सा खाने का टुकड़ा है वो मेरे लिए पर्याप्त है। Jesus was so delighted to hear that. यीशु मसीह ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुआ, आनंदित हुआ। He said, this woman's faith is great. उसने कहा इस स्त्री का विश्वास जो है वो महान है। You can see that faith and humility go together. और हम वहां फिर एक बार देखते हैं कि विश्वास और नम्रता ये साथ साथ चलते हैं। I remember hearing the story of William Carey. और मुझे याद है कि मैंने विलियम कैरी की कहानी सुनी थी। Now he was a professor in Serampore University. और सेरमपुर यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते थे। And one day he was having a dinner with all his English colleagues. और एक दिन उनके सारे जो सहकर्मी थे, अंग्रेजी सहकर्मी थे, उनके साथ वे भोजन कर रहे थे। And one of them wanted to just belittle William Carey, and he said, see, there is a person sitting here who is a cobbler. और उनमें से एक जो अध्यापक थे वो विलियम कैरी का अपमान मानो करना चाहते थे, और वो कह रहे थे कि यहाँ हम जो सब बैठे उसमें से एक व्यक्ति जो है वो मोची है। You know what William Carey said? See, I am not a cobbler. I was a person who was repairing the shoes. और विलियम कैरी ने उनका जवाब दिया कि मैं वास्तविकता में एक मोची नहीं हूं, मैं केवल जो जूते हैं उनकी मरम्मत करने पर या उनको फटने पर सिलाने वाला एक मात्र व्यक्ति हूं। Just imagine, he was a professor, and when that person belittled him, he never got angry, but said, yes, I was not even a cobbler. I was a person who was just repairing the shoes. और सोचकर देखिए, विलियम कैरी जो खुद वहां एक अध्यापक थे, जब किसी और ने उनको अपमानित करने की कोशिश की तो वे बिल्कुल भी क्रोधित न होते हुए ये कहते हैं कि मैं एक मोची तक नहीं था, मैं केवल उन जूतों को सिलाई करने वाले, उनको मरम्मत करने वाला एक व्यक्ति था। See, that is why God could do such wonderful things through that man. इसी वजह से परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा अद्भुत काम कर पाया। Okay, we can see in next verse 7, angel of the Lord encompass around those who fear him and rescues them. और हम भजन 34 उसके 7वें वचन में देखते हैं, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। See, I think you may know that incident when Elisha, that Aramites came and surrounded his house. He was on the mountain, and his servant Gehazi said, see, one day morning the whole army was surrounding that hill. और हम उस घटना को जानते हैं जहां एक दिन एलिशा और उसका सेवक एक पहाड़ पर थे और आराम की पूरी जो सेना है आकर उस पहाड़ को घेर लेती है। And Elisha prayed, Lord, open this person's eye, and what he saw was the whole mountain was filled with the angels of God. और एलिशा ने प्रार्थना की कि प्रभु मेरे दास की आंखों को तो खोल दे, और जब उसके आंखें खुल गई तो उसने देखा कि चारों ओर परमेश्वर के दूत वहां डेरा डाले हुए हैं। See, Jesus said, I think you may know that incident where he was talking to Nathaniel, and Jesus said, angels of God are ascending and descending upon the Son of God, Son of Man. और हम जानते हैं कि यीशु जब उस नथनिएल से बात कर रहा था तो उसने नथनिएल से कहा कि परमेश्वर के स्वर्गदूत जो है वो मनुष्य के पुत्र के ऊपर वहां आते जाते हैं। In other words, what he was telling is one shift of angels are over and they ascended,
And the next shift, the angels come down to look after Jesus Christ. और दूसरे शब्दों में यीशु से ये कह रहा था कि अभी स्वर्गदूतों की मानो एक शिफ्ट खत्म होकर वो ऊपर जा रहे हैं और दूसरे स्वर्गदूत यीशु मसीह के वहां उतर रहे हैं. I want to tell you that is true. If that is true of Jesus, it is true of his children also. मैं आपको बताना चाहता हूं अगर ये यीशु के लिए सच था तो उसकी संतानों के लिए भी ये सच है. I remember the story of a small girl. She was so frightful, and she was frightened about night and about so many things. She was afraid of going out in the public and so many things like that. और वो छोटे लड़की की कहानी याद है जो बहुत ज्यादा डरती थी. उसको रात से डर था, अंधकार से डर था, बाहर जाने से कई बातों से वो डरती थी. But she prayed to the Lord, Lord, deliver me from fear. और उसने प्रार्थना की प्रभु से कि प्रभु मुझे भय से तू छुटकारा दे. And one day she saw a dream. और एक दिन उसने एक सपना देखा. That dream, she saw that she was surrounded by a tremendous light. और उस सपने में उसने देखा कि एक बहुत बड़ी ज्योति से वो घिरी हुई है. And the devil was throwing arrows at her, but none of the arrows are touching her. और शैतान जो है वो उस पर बाण छोड़ रहा था पर एक भी उसमें से उसके निकट नहीं आया. They come near to this wall of fire and they get burned up. और मानो एक अग्नि समान एक दीवार उसके आसपास थी और वहां आकर वो जल जाते थे. But then she saw that there are certain times some holes are formed in those lights and few arrows come through that and touch her. और उसने देखा कि कभी-कभी उसके आसपास जो ज्योति है उसमें कहीं छेद हो जाता है और उन छेद के द्वारा वो जो तीर है वो तीर आकर उसे छू लेता है. Then she woke up. तब वो जग गई. She understood what the meaning of the dream. और उस सपने का अर्थ क्या है वो समझ गई. Without God's permission, nothing will touch her. परमेश्वर के अनुमति के अलावा कोई भी चीज उसे छू नहीं सकती. That is something that we have to believe. God is in total control, and only what God allows will touch his children. ये ऐसा कुछ है जिस पर हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर पूर्ण नियंत्रण में है और केवल ऐसी ही बातें हमें छू सकती है, उसके संतानों को छू सकती है जिसकी अनुमति खुद परमेश्वर देता है. And then see what is written in verse 8. Taste and see that the Lord is good. How blessed is the man who take refuge in him. और भजन 34:8 में लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है. See, imagine I describe here about one apple. Imagine I describe the taste of an apple for half an hour. What will you understand about that taste? और सोचकर देखिए अगर मेरे पास यहाँ एक सेब है और उस सेब की टेस्ट के बारे में मैं आधा घंटा वर्णन करता हूँ, आप क्या समझोगे कि वो चखने में कैसे लगता है. But the moment you put one piece of apple in the mouth, you know what is the real taste of it. पर जैसे ही आप उस सेब का एक टुकड़ा भी खा लेते हो आप तुरंत जान जाते हो कि उसका स्वाद वास्तविकता में कैसा है. I was reading this verse like this. Oh, taste and see that the Lord is my Father. और मैं इस वचन को इस प्रकार पढ़ रहा था कि चख कर देखो, हिंदी में परख कर लिखा है, उसका दूसरा भाषांतर है चख कर देखो कि परमेश्वर हमारा पिता है. See, I want to tell you that we have to taste and see that God is a Father who is in total control of everything and who takes care of every aspect of our life. और मैं कहना चाहता हूं कि हमें चक्कर देखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारा पिता है और वो सारी बातों के नियंत्रण में है और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र, हर एक पहलू को वो देखभाल करेगा. I want to tell you, ask the Lord to give you a revelation. Lord, I want revelation of God as my Father. मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर से मांगे कि वो आपको एक प्रकाशन दे कि आप ये प्रकाशन पाए कि परमेश्वर मेरा पिता है. I prayed that so many times, and slowly God began to show me more and more God as a Father who is taking care of me. मैंने कई बार ये प्रार्थना की है और धीरे धीरे परमेश्वर मुझे दिखाने लगा कि वो मेरा पिता है जो मेरी देखभाल करता है. Okay, now let's read the same verse like this. Taste and see the fellowship with the Lord and see how sweet and wonderful it is. आइए हम इस वचन को इस प्रकार पढ़े कि चक्कर देखो कि प्रभु के साथ जो संगति है वो कैसी मीठी है. Taste and see how loving the Lord is.
चक्कर देखो कि प्रभु कितना प्रेम करने वाला है। I want to tell you that I began to taste it, and I can honestly say the fellowship with the Lord is far greater than anything I can ever imagine. और मैंने इसको चखा और मैं आपको कह सकता हूं कि प्रभु के साथ जो संगति है हमारी किसी भी सोच से ज्यादा वो अद्भुत है। See, you know what is the greatest pleasure a man can ever get? क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा वो सुख कौन सा है, आनंद कौन सा है जो एक मनुष्य कभी पा सकता है? Can you think of the greatest pleasure on earth what a man can ever get? क्या आप सोच सकते हो कि इस पृथ्वी पर ऐसा सबसे बड़ा आनंद कौन सा है जो मनुष्य कभी पा सकता है? In Psalm 16, the last verse says, In भजन his 16 presence में is लिखा है, fullness of joy, and on his right hand are pleasures forevermore. भजन 16:11 में लिखा है उसके अंतिम भाग में, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। You know, what is there or who is there at the right hand of God? Can you ever, do you know who is there at the right hand of God? और परमेश्वर के दाहिने हाथ में क्या है, या परमेश्वर के दाहिने हाथ में कौन है, क्या आप जानते हो? I think all of us know it is Jesus Christ who is at the right hand of the Father. शायद हम सब जानते हैं कि वो यीशु मसीह है जो पिता के दाहिने ओर है। So what he's really telling is, in Jesus, you can really get the greatest pleasure a man can ever get. और वास्तविकता में वो वचन हमें ये बता रहा है कि यीशु में मनुष्य वो सुख पा सकता है जो सबसे बड़ा सुख है जो मनुष्य कभी अनुभव कर सके। See, I want to tell you, when we begin to experience that love of Jesus and the sweetness of the fellowship with Jesus, fear just goes out from our life. मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हम यीशु मसीह के प्रेम को अनुभव करने लगते हैं और यीशु के संगति से आने वाली मधुरता का हम अनुभव करते हैं तो डर और भय हमारे जीवन से जाने लगता है। You know, there's a verse in First John chapter 4 verse 18 which says, there is no fear in love. और पहले Perfect love casts out fear, because fear involves torment, and a man who is perfected in love, a man who is fearful is not perfected in love. और पहला यूहन्ना 4:18 में लिखा एक वचन है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। See, it's written there about perfect love. और वहां सिद्ध प्रेम के विषय में लिखा है। What is the meaning of perfect love? सिद्ध प्रेम का क्या मतलब है? Perfect love is God's love, agape love. सिद्ध प्रेम ये परमेश्वर का प्रेम है, अगापे प्रेम है। So that verse says that as I begin to taste that agape love of God more and more, you know what happens? Fear just goes out from our life. और वो वचन हमसे ये कहता है कि जैसे जिस मात्रा में बढ़ते हुए मात्रा में मैं परमेश्वर के प्रेम को, अगापे प्रेम को चखने लगता हूं, वैसे वैसे भय मेरे जीवन से जाने लगता है। It's just like that we said about faith, the law of expulsion. When we come to know that love of God, fear just moves out from our life. और जैसे हमने विश्वास के बारे में भी कहा कि एक निकल जाने का मानो नियम है कि जैसे विश्वास आता है भय जाता है, बिल्कुल वैसे जब हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं भय हमारे जीवन से निकल जाता है। So I want to encourage myself and all of us, let's begin to taste God, His love. Let's begin to taste God as our Father. Let's begin to taste His fellowship. और This मैं is the thing that moves fear out of our life. और मैं अपने आप को और हम सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आइए हम चख के देखें कि परमेश्वर हमारा पिता है। आइए हम चख के देखें कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है और उसकी संगति में कैसी मधुरता है, और इन बातों से भय हमारे जीवन से निकल जाएगा। I want to really challenge each one of us and myself. See, we have, somebody said that man is created for two reasons. और मैं हम सबको और मुझे भी ये चुनौती देना चाहता हूं, किसी ने ये कहा है कि मनुष्यों का निर्माण दो उद्देश्य से किया गया है। The first reason is man is created to worship God. पहला कारण ये है कि मनुष्य को बनाया गया कि वो परमेश्वर की आराधना करे। And second is man is created to enjoy God. और दूसरा कारण ये है कि मनुष्य का निर्माण इसलिए हुआ है कि वो परमेश्वर में आनंद पाए।
See, I want to tell you, each of us are created to enjoy God in our life. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम सबको निर्माण किया गया है कि हमारे जीवन में हम सब परमेश्वर से आने वाला सुख या आनंद को प्राप्त करें। When we get that enjoyment from God, through God, all the other enjoyment just, it has got no place in our life. जब हम उस आनंद को परमेश्वर से प्राप्त करते हैं तो फिर बाकी सारे आनंद या सुख जो है उनकी हमारे जीवन में कोई जगह नहीं बचती। You know why people are so drawn to maybe serials or maybe pornography, or we can say things of the world, pleasures in computer or pleasures of mobile or whatever games. Okay, what is the reason why people are drawn to all these things? Because they have not known this enjoying God. और वो क्या कारण है कि कई लोग जो है वो टीवी सीरियल में देखने में उन्हें एक आनंद मिलता है या अश्लील बातें देखने में आनंद मिलता है या इंटरनेट से आने वाला एक आनंद हो या टीवी से आने वाला या मोबाइल पे गेम्स खेलने से आने वाला आनंद हो, क्यों वो इन आनंद के प्रति खींचे जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर से आने वाले आनंद का उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया है। Jesus said that everyone who drinks of the water of this world will thirst again. और यीशु ने कहा जो कोई इस संसार के जल से पिएगा वो फिर प्यासा रहेगा। That means we try to get this enjoyment from all these gadgets or pornography or TV or computer or mobile or whatever. We are going to be thirsty and thirst will never be quenched. और इसका मतलब हम चाहे कितनी भी अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करें इस अश्लील बातों को देखकर या मोबाइल से या कंप्यूटर से या किसी भी बात से हम अपनी प्यास बुझाने की क्यों ना कोशिश करें, हम फिर एक बार खाली महसूस करेंगे और फिर से प्यासे हो जाएंगे। But Jesus said, the one who drinks of the water that I give, you know what he says, will never thirst. पर यीशु ने कहा परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर प्यासा न होगा। And that water will become in him well of water springing up to eternal life. और जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। I want to ask each of you, let's ask this question, have our thirst been quenched? और मैं आप सब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, हम सब अपने आप से ये पूछे कि क्या हमारी प्यास बुझ चुकी है? Can we really say I've got no taste to anything in this world? क्या हम वास्तविकता में कह सकते हैं कि इस संसार में किसी और बात के लिए अब हमें उसमें से स्वाद नहीं मिलता? There is only one way of reaching there. That is when we really begin to, as I said earlier, enjoy God. उस स्थान पर पहुंचने का एक ही जरिया है कि जैसे मैंने पहले कहा, हम वास्तविकता में परमेश्वर से आनंद पाना शुरू करते हैं। That is how we can get freedom from fear. इसी प्रकार हम भय से छुटकारा पा सकते हैं। I want to just show you one example from about faith from 1 Samuel chapter 13. मैं आपको विश्वास का एक उदाहरण दिखाना चाहता हूँ, पहला शमूएल उसके 13 अध्याय से। Quickly, I'll go through this portion. It's written about an incident when Saul was a king. और मैं जल्द से एक घटना बताता हूँ, ये उस समय की घटना है जब सॉल राजा था। And in verse 5 is written, a huge army of Philistines came, and the number of people were so huge that it's like sand at the seashore. और 5वें वचन में लिखा है कि पलिश्ती इस्राएल से युद्ध करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना लेके आए और वो इतनी बड़ी संख्या थी कि समुद्र के बालू के किनकों के समान वो लोग दिखने लगे। And it's written verse 6, when the people of Israel saw this, they became so afraid. They began to hide in caves and thickets, cliffs, cellars and in pits. और 6वें वचन में ऐसा लिखा है कि जब इस्राएली पुरुषों ने ये देखा तो ऐसे वो डर गए कि वे लोग गुफाओं में, झाड़ियों में, चट्टानों में, गड्ढियों में और गड्ढों में जा छिपे। See, it's written in verse 17 onwards is written that these Philistines began to send raiders to the land of Israel. और 17 वचन से आगे लिखा है कि पलिश्तियों के छावनी में से आक्रमण करने वाले ऐसे दल भेजकर वो इस्राएल में भेजने लगे। 3 companies were sent, and their aim was, in verse 19 when we read it's written, their aim was to kill all the blacksmiths of the land in Israel.
और वे 3 दल उन्होंने वहां से भेजे और 19 वचन कहता है कि उनका लक्ष्य ये था कि इस्राएल में सारे लोहार जो है उनको वो खत्म कर दे। So what happened is, in the day of battle, we can see in verse 22, only Saul and Jonathan had weapons. Now nobody else had weapons. और 22 वचन में हम पढ़ते हैं कि युद्ध के दिन केवल शाऊल और योनातन के पास ही तलवार और भाला थे, बाकी किसी भी और व्यक्ति के पास हथियार नहीं थे। Now tell me, what is the chance of Israel winning that day? अब बताइए क्या संभावना है कि इस्राएल उस दिन उस युद्ध को जीत सकता था? The Philistines are such huge number. Here in Israel camp, only 2 people have got weapons. फिलिस्तियों पहले तो संख्या में बहुत ज्यादा है और यहाँ इसराइलियों के छावनी में केवल 2 ही लोग हैं जिनके पास हथियार है। I think the chance are like 99.99% for Philistines and 0.001 for Israel, something like that. और मैं सोचता हूँ कि वहां इसराइल के हारने की संभावना या फिलिस्तियों के जीतने की संभावना मतलब लगभग 99% से ज्यादा होगी और इसराइल का शायद बहुत ही कम संभावना थी कि वो जीत जाए। But there was one man who had faith, पर वहां एक व्यक्ति था जिसके पास विश्वास था and that was Jonathan. और वो था योनातान। He called his servant, and just 2 people went to this huge army of Philistines. और उसने अपने सेवक को बुलाया और केवल ये 2 लोग इस बड़ी फिलिस्तियों की सेना के बीच गए। We can see in verse 6 what Jonathan was telling. In the second part is written, perhaps the Lord will work for us, for the Lord is not restrained to save us by many or by few. और पहला शमूएल 14:6 में हम पढ़ते हैं उसका दूसरा भाग, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। You know what happened is when they went, just 2 people went. They fell before them, and just 20 people they could kill. और उस दिन ये हुआ कि जब वे उस छावनी में आगे गए तो वहां लोग उनके सामने उन्होंने 20 लोगों को मार गिराया। Suddenly something happened. The earthquake happened. There was a huge confusion among Philistines. They began to kill each other, and that day Israel won. और अचानक ऐसा हुआ कि उस दिन एक भूकंप आया और फिलिस्तियों के छावनी में सब गड़बड़ी मच गई और उस दिन इस्राएल जीत गया। See, just imagine, one man had faith, and that saved the day for Israel. और सोचकर देखिए एक व्यक्ति के पास विश्वास था और उस वजह से उस दिन इस्राएल बच गया। When all the other people were so fearful, one man had faith. जब बाकी सारे लोग इतने डर गए थे तब एक व्यक्ति के पास विश्वास था। Few chapters afterwards, verse 17, we can see another man. When Goliath came, there was another man who, a single man, had faith. That is David. कुछ ही अध्यायों बाद हम देखते हैं एक और ऐसा मनुष्य था, जब गोलियत आया और सब लोग डर गए थे, ऐसा एक विश्वास से भरा व्यक्ति था जो दाऊद था। No, all the soldiers of Israel were so afraid, but David was not even a soldier. He was just a shepherd boy who came to see his brothers in the camp. और इस्राएल के सारे जो सैनिक थे वो इतने डरे हुए थे, जबकि दाऊद एक सैनिक भी नहीं था, वो केवल एक चरवाहा था जो अपने भाइयों को वहां मिलने के लिए आया था। I want to show you one verse in chapter 17 and verse 36. You know, David is talking to Saul. और पहला शमूएल 17:36 का वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दाऊद शौल से बात करता है। And he was telling, your servant has killed both lion and the bear. This uncircumcised Philistine is like one of them. और वहां वो कहता है तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वो खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा। But suddenly he changed his sentence. He altered his sentence slightly like this. और वो ऐसा कहने वाला था और अचानक वो अपने वाक्य को इस प्रकार बदलता है। Verse 37, the Lord who delivered me from the paw of the lion and the paw of bear, he will deliver me from the hand of Philistines. और 37 वचन में अपना वाक्य बदलते हुए ये कहता है, यहोवा या प्रभु जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। In verse 36, actually he was taking the glory to himself. और 36 वचन में वो अपने आप के लिए महिमा ले रहा था। But suddenly he realized it, and
then he gave the full glory to God. He said, God delivered me from the hand of lion and from the hand of bear. God will deliver me from this Goliath also. पर अचानक उसने ये महसूस किया और वो पूरी महिमा परमेश्वर को देते हुए कहता है कि परमेश्वर है जिसने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचाया है और परमेश्वर ही मुझे इस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा. I want to tell you that is a great secret of faith. When we give glory to God, we get strengthened in our faith. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये विश्वास का एक बहुत बड़ा रहस्य है. जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं हम अपने विश्वास में बलवंत होते हैं. We can see that he went with a sling and 5 stones. He had to use only 1 stone. That it was enough to kill that Goliath. और हम देखते हैं कि वो गोफन और कुछ पत्थर लेकर जाता है और उसमें से एक ही पत्थर काफी था गोलियत को मारने के लिए. See, if 1 stone hit my forehead, I don't think I will die. But that day Goliath died because of the faith of David. और मुझे लगता है अगर एक पत्थर मुझे अपने माथे पर लगे तो उससे मेरी मृत्यु नहीं होगी, पर उस दिन दाऊद के विश्वास की वजह से गोलियत मर गया. You can see how faith overcomes fear and faith gives us victory in our life. हम देखते हैं कैसे विश्वास भय पर जयवंत होता है और कैसे विश्वास हमारे जीवन में हमें विजय देता है. You know, the greatest fear of all is the fear of death. एक और जानते हैं सबसे बड़ा भय जो है वो है मृत्यु का भय. We can see that in 1 Corinthians chapter 15. और पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय में हम ये देखते हैं. Every man is fearful of death. प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति मृत्यु से डरता है. But in this portion is written what is the reason why they are fearful of death. पर इस वचन में लिखा है कि वो क्यों मृत्यु से डरते हैं. We can see 1 Corinthians 15 verse 55 onwards. Oh, death, where is the victory? Oh, death, where is the sting? The sting of death is sin. The power of sin is the law. But thanks be to God who gives victory through our Lord Jesus Christ. और पहला कुरिन्थियों 15:55 से आगे लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा. मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है. See, it's clearly written the sting of death. You know what the sting of a scorpion, etc. No, it pains so much. The same way, you know what is the thing that stings when we remember about death? The reason why that sting comes is because of sin. और यहाँ लिखा है मृत्यु का डंक. हम जानते हैं जैसे एक बिच्छू का डंक होता है तो क्यों हम मृत्यु से इतना डरते हैं. वहां लिखा है कि मृत्यु का डंक पाप है. And the power of sin, that means as we come to know about the law of God, the power of sin increases. और फिर लिखा है पाप का बल व्यवस्था है, जिसका मतलब है जैसे जैसे हमें परमेश्वर की व्यवस्था या नियम मालूम होते हैं वैसे वैसे पाप का बल बढ़ते जाता है. And our fear also increases. उसी के साथ हमारा भय भी बढ़ता है. The way we can overcome fear is when sin is removed from our life. और भय पर हम जय पाने का एक तरीका यह है कि जब पाप हमारे जीवन से, जब हम अपने जीवन में पाप पर जयवंत होते हैं. Not jayavant, when we truly repent of sin. माफ कीजिएगा, जब हम पाप से वाकई में मन फिराते हैं. See, when true repentance come, when we know that our sins are forgiven, when we know that we are justified, we are declared righteous, God looks at me as if I've never sinned. And there is nothing to be fearful of death, because if I die, I'm going to go to a far better place. जब हम वाकई में मन फिराते हैं, जब हम जानते हैं कि हमारे पाप शुद्ध हुए हैं और जब हम जानते हैं कि हम धर्मी ठहराए गए हैं और जब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर मुझे ऐसी निगाह से देखता है मानो मैंने इसके पहले कभी पाप ही नहीं किया, फिर हम जानते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं इससे काफी बेहतर जगह जाने वाला हूँ. So just imagine you're going from India to USA. I mean, there is nothing to be fearful of that. In fact, you'll be very happy to go there because you're going to a better country. और सोचकर देखिए, अगर आप भारत से अमेरिका जा रहे हो तो उसमें डरने की क्या बात है. आप तो ज्यादा खुश होगे कि आप एक बेहतर देश में जा रहे हो. So in the same way, there is nothing to be fearful of death if sin is removed. But as long as sin is, when that power of sin is there in our life, then power of sin is there, then the fear comes in our life. और इसलिए जब हमारे जीवन में वो पाप निकल चुका है तो फिर हम डरेंगे नहीं, पर जब तक वो पाप का सामर्थ होगा तब तक हम डरते रहेंगे.
So let's see just one more portion, that is Psalms 27. और एक और वचन हम देखेंगे भजन 27 अध्याय। We can see here again, David is telling, the Lord is my light and salvation, whom shall I fear? और पहले वचन में हम देखते हैं फिर एक बार दाऊद कह रहा है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? And the Lord is the defense of my life, whom shall I dread? और फिर लिखा यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? And verse 3, though a host encamps against me, my heart will not fear. और तीसरा वचन कहता है चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। And then he says, what is the reason why that fear is not there in his life? और फिर वो कहता है क्या कारण है कि उसके जीवन में भय नहीं है? He's telling in verse 4, one thing I've asked, and that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, and behold the beauty of the Lord and meditate in his temple. चौथे वचन में लिखा है एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। See, today we can say, see, what is which is the temple of the Lord? My body is the temple of the Lord. और आज हम कह सकते हैं कि प्रभु का मंदिर क्या है? मेरा शरीर ये परमेश्वर का मंदिर है। In my heart, the Trinity is there, Holy Spirit is there. God has sent the Holy Spirit right inside my heart. मेरे हाथ में मेरे हृदय में वो त्रिक के परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है जिसको परमेश्वर ने मेरे हृदय में भेजा है। And just like what is written here, one thing I've asked, and that is, what is the meaning of seeing the beauty of the Lord? That is, as we said earlier, entering into that life of fellowship with Jesus. और जैसे यहाँ लिखा है कि मैंने एक वर मांगा है प्रभु से, इसका क्या मतलब है कि मैं प्रभु की मनोहरता पर दृष्टि लगाऊं? जैसे मैंने पहले कहा कि हम उस जीवन में प्रवेश करते हैं जहां हमारी यीशु के साथ संगति है। And it's written, meditating in his temple, meditating on Jesus, fixing my eyes on Jesus and just remaining in his presence, enjoying him. और जैसे लिखा है कि उसके मंदिर में ध्यान किया करो, इसका मतलब यीशु पर ध्यान करो, उसके उपस्थिति में होकर उससे मैं आनंद पाऊं। And we can see in verse 5, the day of trouble will conceal me in his tabernacle. और 5वें वचन में हम देखते हैं क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। You can see last one more psalm, that is Psalm 46. एक और भजन हम अंत में देखेंगे, भजन 46। It's written here, verse 1, God is our refuge and strength, very present help in time of trouble. यहाँ पहले वचन में लिखा है, भजन 46 उसका पहला वचन, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। In the margin is written like this, abundantly available for help in trouble. और इसी का एक और भाषांतर ऐसा है कि संकट के समय बहुतायत से मिलने वाला सहायक वो है। And then is written, therefore will not fear, even though the earth should change, though the mountains slip into the heart of the sea, the waters roar and foam, the mountains quake at the swelling of the pride. और फिर लिखा है उसके बाद, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। See, just think of what all different things written here. It's written earth, it's something like an earthquake happening, the mountains almost slip into the heart of the sea. और सोचकर देखिए कैसी कैसी बातें यहाँ लिखी गई है, मानो एक भूकंप आ जाता है, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाते हैं। And what, because mountains slip like that, what happens? Waters roar and foam. और पहाड़ समुद्र में जाने की वजह से क्या होता है, समुद्र गरजने लगते हैं और फेन उठाते हैं। And then what happens? The mountains are quaking at the swelling pride. और फिर होता है कि पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठते हैं। You can say all sorts of bad things are occurring. और हम कह सकते हैं कि सारी प्रकार की बुरी बातें यहाँ हो रही है। But then a word is written, Selah. Selah means stop. Let's stop there. It's like a song, and there's a stop there. और फिर इन सारे बातों के बाद तीसरे वचन के अंत में सेला लिखा गया है। सेला उस शब्द में का मतलब है कि वहां हम रुक जाइए, गीत के समान है और वो कह रहा है कि यहाँ रुक जाइए। And then he's telling about, in verse 4, there's a river whose streams make glad the city of God, the holy dwelling place of the Most High. और फिर चौथे वचन में वो कहता है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। And what is that river? That river is the Holy Spirit. और वो नदी क्या है? वो नदी है पवित्र आत्मा। I would tell you that if really we want to get freedom from fear,
See, we are living in these last days. Things are going from bad to worse. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं और बातें बुरे से बदतर होते जा रही हैं। There is a verse in Daniel which says, the people who knew their Lord will do mighty things. और दानियल नबी के पुस्तक में एक वचन है कि जहां लिखा है, जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वे महान काम करेंगे। What we need in these days is to daily live in that filling of the Holy Spirit. इन दिनों में हमारी आवश्यकता ये है कि हर दिन हम पवित्र आत्मा की भरपूरी में जिए। When that Holy Spirit comes upon our life, what God really does is He pours His love into our heart. और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो असलियत में वो ये करता है कि वो परमेश्वर के प्रेम को हमारे हृदय में उंडेलता है। And as we saw earlier, perfect love casts out fear. और जैसे हमने पहले भी देखा कि सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। I want to tell you that is the only way fear goes out from our life. और मैं आपको कहना चाहता हूँ ये इकलौता मार्ग है जिससे भय हमारे जीवन से निकलता है। We are not living in the Old Testament days where God is saying, "You shall not fear." No, we'll just get fearful only. That type of commandment will not help us. हम पुराने नियम के दिनों में नहीं रह रहे जहां परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम कभी नहीं डरोगे, क्योंकि इस प्रकार की आज्ञा से तो केवल हम और भयभीत होंगे। But God is telling in the new covenant, "I will write my laws in your heart." पर परमेश्वर नई वाचा में कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था को तुम्हारे हृदयों पर लिख दूंगा। I will give you the Holy Spirit. मैं तुम्हें पवित्र आत्मा को दूंगा। I will give you, Holy Spirit is the paracletus, that is one who comes alongside us to help us. मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा जिसको पैराक्लिटस कहा गया है, जो तुम्हारे साथ आएगा तुम्हारी सहायता करने के लिए। And this Holy Spirit will give us, he will pour into us the love of God. और ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम को उंडेल देगा। And that will, as we said, the law of expulsion, expel or remove from our life fear from our life. और फिर जैसे हमने कहा कि वो एक निकाल देने का नियम है, इस पवित्र आत्मा के द्वारा वो भय जो है हमारे जीवन से निकल जाएगा। But God can give us the Holy Spirit only when we totally consecrate ourselves before Jesus Christ. परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा को दे सकता है, पर केवल तब जब हम पूरी तरीके से अपने आप को यीशु मसीह के सामने समर्पित करें। If we are saying, I cannot forgive that person, I cannot ask forgiveness, I cannot ask forgiveness to my wife, I cannot do this. If he says such things, Holy Spirit can never come to our life. हम कहते हैं कि नहीं, मैं उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता, मैं क्षमा नहीं मांग सकता, मैं अपने पत्नी से माफी नहीं मांग सकता, अगर मैं ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, अगर हम ऐसा कहते रहेंगे फिर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं आएगा। I want to tell you, God is calling only those who are absolutely fed up with sin. मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर केवल उन्हीं लोगों को बुला रहा है जो पाप से पूरी तरीके से तंग आ चुके हैं। Come to me, all who are weary and heavy laden. जो थके हुए हैं और बोझ से दबे हुए हैं वे मेरे पास आए। They will say, Lord, I'm ready to pay any price, but I want you. हम कह सकते हैं कि प्रभु मैं किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूं, पर मैं तुझे चाहता हूं। God is only calling such people today. परमेश्वर केवल ऐसे ही लोगों को आज बुला रहा है। All the other people, they can come to church, they can attend meetings, they can warm the seats and they can go, but nothing will happen in their life. बाकी सारे लोग कलीसिया में आ सकते हैं, सभाओं में आ सकते हैं, केवल बैठकर जा सकते हैं, पर उनके जीवन में और कुछ नहीं होने वाला। If we are desperate, saying, Lord, at any price, I want your best, then God can work in our life. पर अगर हमारे अंदर ये तीव्र इच्छा है कि प्रभु किसी भी कीमत पर मैं मेरे जीवन के लिए तेरा सर्वश्रेष्ठ चाहता हूं, फिर परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। Such people he can free from fear. ऐसे लोगों को वो पाप से छुड़ा सकता है। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।